Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। Delighted to bring to you the covenant series of messages. और वाचा के ये श्रृंखला को आपकी और प्रस्तुत करने के लिए मैं आनंदित हूँ। Cutting a covenant. एक वाचा को काटना या बांधना। We are in the 5th part today. आज हम 5वें भाग में हैं And it is exchange of belt. और आज है कट्टीबंध का अदला बदली। After exchanging the robes, the next step is to exchange the belts. और वस्त्र को की अदला बदली के बाद कट्टीबंध की अदला बदली अगला पड़ाव है। When it comes to exchange of belts, और जब कट्टीबंध की अदला बदली आती है, there is a question which is coming. एक प्रश्न हमारे सामने आता है, What is the purpose of exchanging the belt? और कट्टीबंध को बदलने का क्या फायदा है? What is the benefit if this belt is going to that person and that belt is coming to this person? अगर इसका बेल्ट मेरे पास आता है और मेरा बेल्ट इसके पास आता है, इससे तो क्या लाभ मिलेगा? When we talk about the dress being exchanged, और जब हम वस्त्र का अदला बदली बोलते हैं, then we say at least it is the identity of a person. और हम उस समय कह सकते हैं ठीक है, वस्त्र का मतलब एक व्यक्ति का पहचान है। But when we exchange the belt, what it is? पर जब हम कट्टीबंध को बदलते हैं तो उसका अर्थ क्या है? There is something very important we have to understand. एक बहुत ही मुख्य बात हमें समझना है। In the belt, there is a sword and money will be given that time. पर क्या है कि कट्टीबंध में तलवार और पैसा का बंटवारा रखा जाता है। What comes to our mind first when we say belt? और जब हम बेल्ट बोलते हैं या कट्टीबंध बोलते हैं तो क्या हमारे मन में पहले आती है? It is the one which will hold the pen. जो हमारा पैंट को पकड़ के रखता है। But in those days, people are not wearing pant. पर उन दिनों में लोग पैंट नहीं पहनते थे। So they were wearing a very long robe. एक ही वस्त्र पहनते थे लंबा सा। So where they will keep the money? तो वो बटवा कहाँ रखेंगे? So they will keep and they have to keep sword also. तो उनके पास वो हमेशा तलवार भी रखते थे। So they will keep a sword which is attached to the belt. तो अपने बेल्ट के साथ वो तलवार को रखते थे। And also in the belt itself there will be like one small purse like thing. They will keep money there. और बेल्ट में ही एक पर्स के लिए एक जगह होगा, वहां पर वो पैसा को रखते थे। The Roman soldiers were given salt as their salary. और रोमियो सैनिक जो है उनको तनख्वाह के या कमाई के रूप में नमक दिया जाता था। The English word salary comes from the Latin word salarium. और सैलरियम बोल के एक लैटिन शब्द है, वहीं से सैलरी इंग्लिश का शब्द आता है। Sal. साल, S-A-L, sal. साल, S-A-L, That means salt. इसका मतलब है नमक। And that only became soldier. और वो ही बन गया सोल्जर या सैनिक। He gets payment in salt, so he is soldier. तो उसकी कमाई नमक से के द्वारा होती है, इसलिए या वो नमक कमाता है, इसलिए उसको सोल्जर सैनिक कहा जाता है। In those days, the soldiers were paid salary and they used to receive salt as salary. उन दिनों में सैनिकों का जो कमाई है वो नमक था। So now if you give salt to a person, that person will understand the value of salt. तो यदि एक व्यक्ति को हम नमक देते हैं तो वो उस नमक का मूल्य को जान पाएगा। You give gold to a person, एक व्यक्ति को आप सोना दीजिए, he can eat gold. क्या वो सोने को खा सकता है? No, नहीं, we cannot eat gold. हम सोने को खा नहीं सकते। But if you give salt to a person and if he is going to cook, he knows the value of salt. पर यदि हम नमक किसी को देने वाले हैं और वो उस नमक को पका के खाएगा तो उस नमक का मूल्य वो जान पाएगा। If the cooking is taking place, यदि खाना पक रहा है, rice is there, चावल है, mutton is there, मटन है, vegetables है, सब्जियां हैं, but salt is not there. केवल नमक नहीं है। How to eat? कैसे खाएं? How the taste will come? कैसे टेस्ट आएगा? So we can say
Manchurian, chicken Manchurian, mutton Manchurian, or any dish we can say, very special dish. हम किसी भी डिश का नाम ले सकते हैं, मटन मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, बड़े बड़े नाम तो ले सकते हैं, But salt is not there, Baba. How to eat? पर उसमें यदि नमक नहीं है तो कैसे खाए भाई? If somebody says, today onion is very less, sir, यदि कोई कहता है कि आज घर में प्याज कम है or ginger is very less, sir, या अदरक कम है, we will say, okay, adjust. हम बोल सकते हैं कि एडजस्ट करके पकाओ। But if the cook is telling salt is not there, पर यदि वो खाना बनाने वाला कह रहा है कि नमक नहीं है घर में, nobody can say adjust and cook. कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि एडजस्ट करके कैसे भी पकाओ। So, my dear children of God, तो मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, salt played a very important role. नमक एक बहुत ही मुख्य पात्र निभाता है। Roman soldiers were paid in salt. रोमी सैनिकों को नमक ही कमाई होती है। They can buy anything by giving salt. इस नमक को देखकर वो बाजार में कुछ भी खरीद सकते थे। When the Roman soldiers were working, और जब रोमी के सैनिक काम करते थे, if a handful of salt is given, means that is one day salary. और मुट्ठी भर का नमक जो है एक दिन का कमाई होता So था। they take that salt and put in the purse. तो वो नमक को लेकर उसको पर्स में डाल देते थे, Now they go to the market. मार्केट में जाते थे। So they want to buy vegetables. यदि वो सब्जी खरीदना चाहते So हैं, they get the vegetable. सब्जी को लेते हैं, So what they give? बदले में क्या देंगे? Salt. नमक। So they take little salt. Based on the measurement, they take salt and give. और उस नाप के अनुसार वो नमक लेकर दे देते They want to हैं। go and buy rice. यदि वो चावल खरीदना चाहते हैं, Now they give salt as payment. और बदले में वो नमक दे देते थे। So like this was the system during those times. उन दिनों में ऐसा ही था सिस्टम। So on the belt, what was there? Weapon was there and money. Money means salt. So both was kept. तो बेल्ट में कट्टीबंद में क्या होती थी? नमक या का पैसा और तलवार होता था। So when the belt is exchanged means और कट्टीबंद की अदला बदली, इसका मतलब ये है all my weapons are your weapons. मेरा सारा जो मेरे सारे जो हथियार है उनकी हथियार है, And all my resources, that is money, all my resources are your resources. और मेरा सारा जो धन, मेरी पैसा है, सब कुछ उनका है। Let us turn our Bible to 1 Samuel chapter 18 verse 4. पहला शमूएल 18 उसका 4 लेंगे। Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपने तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। So David and Jonathan have entered into a covenant. तो दाऊद और योनातान यहाँ पर एक वाचा बांधते हैं। So Jonathan gives David his sword, bow and belt. और योनातान अपना तलवार, अपना धनुष और कटिबंध दे देता है। The reason we are studying is we have to understand that we have entered into a covenant with our Lord Jesus Christ. और हमारा ये अध्ययन का कारण ये है कि हम समझ पाए कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधे हैं। We do not have garments. हमारे पास वस्त्र नहीं, He gave his robes to us. उन्होंने अपना वस्त्र हमें दिया। We don't have belt. हमारे पास कटिबंध नहीं, We don't have sword or we don't have any money or resources. या हमारे पास धनुष नहीं है या किसी भी प्रकार का धन संपत्ति नहीं है। Now can I say my weapon is your weapon? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा हथियार तुम्हारी हथियार है? We don't have weapon now. हमारे पास तो हथियार ही नहीं है ना। So we cannot give anything to Lord Jesus तो Christ. हम प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं दे सकते। But do you know what our Lord is telling? पर आप जानते हैं हमारे प्रभु क्या कहते हैं? My weapons are your weapons. मेरा हथियार तुम्हारी हथियार है, My money is your money. मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है। Now think honestly and tell, और ईमानदारी से सोच के बताइए, is there a necessity for you to worry about anything? क्या आपको किसी भी बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता है कि नहीं? What do you say? जरूर नहीं.
There's no need. No need. He is in covenant. He is going to fulfill all my needs. He is going to take care of me. हम वाचा में हैं, वो मेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, मेरे सारी बातों को वो देख लेंगे। Then are there troubles in the world? Yes, there are troubles. पर क्या संसार में क्लेश है, समस्याएं हैं? हाँ है। But we have entered into a covenant with our Lord Jesus Christ. That we have to remember always. पर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधे हैं, इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है। Now, if the Lord is with us and Lord is going to fight all our battles, you have to tell me how much percentage is success rate. और यदि प्रभु हमारे पक्ष में है और हमारे लिए लड़ेंगे, तो आप बताइए कितना प्रतिशत जीतने की संभावनाएं हैं? How much possibility we will win the war? और कितना प्रतिशत संभावना है कि हम जीतेंगे? How much? 100%. 100%। Now we have to understand this very, very clearly. इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। God is telling, I am taking care. परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ संभालता हूँ। When He is taking care and 100% He is going to win, why we should worry, Baba? और जब वो सब कुछ देख लेंगे और 100% जीतने की संभावना है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है भाई? So can we say victory is sure? तो क्या हम बोल सकते हैं कि विजय तो निश्चित है? Can we shout विजय तो निश्चित है। 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 Our victory is sure, my dear children of God. हमारा विजय तो निश्चित है। 1 Samuel chapter 17 verse 47. और पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 47। Yeah, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Now, I didn't have anything. God gave me the belt. मेरे पास तो कुछ नहीं था, प्रभु ने मुझे कटिबंध दिया। Now, if I suppose manage some resources, means that resource will get over. यदि मैं अपने लिए कुछ प्रबंध करके रखता हूँ, तो वो सारी बातें जल्दी से खत्म हो जाएगी। But He is giving His resource. पर वो अपना जो रिसोर्सेस है वो हमें देते हैं। Will it get over? क्या वो कभी खत्म होगा? I am asking you, is there necessity for you to worry about money? और मैं आपसे पूछता हूँ कि पैसों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता है कि नहीं? Yehovah Yireh, the Lord is my shepherd. यहोवा यीरे, यहोवा मेरा चरवाहा है। He fulfills all my needs. वो मेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, all these promises we have to keep confessing, and definitely our needs will be fulfilled. और इन सारे बातों को जरूर हमें अंगीकार करना है और हमारी सारी आवश्यकता पूरे होते जाएगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। If it is true you are united with Him in Jesus Christ, यदि ये बात सच है कि हम मसीह में बंधे हुए हैं, there is no need for us to worry about our spiritual warfare. हमारे आत्मिक युद्ध के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। And also there is no need for us to worry about all the issues in this world also. और संसार में होने वाली समस्याओं के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Our Lord knows everything in advance. हमारे प्रभु सब कुछ एडवांस में ही जानते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now let us turn our Bible to the book of Joshua chapter 5 verse 13 to 14. और अभी हम निकालेंगे यहोशू 5 उसका 13 और 14 पद। Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you
for us or for our enemies. Neither he replied, but as a commander of the army of the Lord I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now here Joshua is seeing a man. और यहाँ पर यहोशू एक आदमी को देखता है। Now he is asking, actually, who are you? और पूछता है कि तुम कौन हो? And he says, I am the commander of the army of the Lord, and for that I have come. और वो कहता है मैं कि यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। What is Joshua asking? यहोशू क्या पूछता है? You are our person or you are the enemy person? क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? The angel says, no, not for both. और स्वर्गदूत कहता है, दोनों के लिए नहीं। I have come as the commander of the army of the Lord. मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। I have come here with the purpose. यहाँ एक उद्देश्य के साथ आया। I have come to fight the battle of the Lord. मैं प्रभु का युद्ध लड़ने आया हूँ। Joshua fell face down. यहोशू मुंह के बल दंडवत किया। Now God changed that entire situation. परमेश्वर उस पूरे परिस्थिति को ही बदल डाले। Now when the Lord is fighting the battle, what you should do? जब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं तो हमें क्या करना है उस समय? We have to join the Lord in battle. हमें परमेश्वर के साथ मिलकर युद्ध लड़ना है। When you can join the Lord? कब हम परमेश्वर के साथ मिलकर युद्ध कर सकते हैं? If you are in the covenant, you can join the Lord. यदि आप वाचा में हैं तो आप परमेश्वर के संग लड़ सकते, परमेश्वर के साथ होकर लड़ सकते हैं। What is the meaning of inheritance? और भाग का मतलब क्या है? Inherit means take it by force. और मिरास का मतलब है कि दबाव के साथ या Yes, correct. दबाव के साथ लेना। Now Deuteronomy chapter 8, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय verse 7 to 9, let us read. उसका 7 से 9 हम पढ़ेंगे। 8, 7 to 9, yeah. व्यवस्था विवरण 8 उसका 7 से 9। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियां का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now God is giving inheritance. और यहाँ पर परमेश्वर एक निराश दे रहे हैं। Inherit means take it by force. निराश का मतलब है दबाव के साथ लेना। How to take it by force? कैसे हम आक्रमण करके ले सकते हैं? Enter the land by force. बल के साथ तुम देश के अंदर प्रवेश करना। Maintain the land by force. और बल के साथ तुम उस देश का देख रेख करना। Keep the land or protect the land by force. बलपूर्वक तुम उस देश की रक्षा करना। Now what does verse 8 says? और पद 8 क्या कहता है? A land with wheat, barley, wine, fig, pomegranate, lot of things. गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीर, अनार, बहुत सारी चीजें हैं।
But we cannot think, I went into the land, God told all this is going to come, so I will sit and relax and everything will come on its own. No, it is not like that. और परमेश्वर ऐसे नहीं कहते हैं कि अरे भाई इतना सारा आशीष है, चलो तुम अंदर जाओ और आराम से बैठ के सबके आनंद उठाओ, ऐसे नहीं कहते हैं। You go, तुम अंदर जाओ, work in the land. उस देश में तुम काम करो, And God, when you do the work, God will make everything to grow. और जब तुम काम करोगे परमेश्वर मदद करेंगे कि सब कुछ उगेगा। Maintain the land by force means you have to plow, you have to put water, you have to sow the seed, everything should be done. और जमीन को बलपूर्वक तुम्हें अच्छे से उसका देख रेख करना है। इसका मतलब है कि बल के साथ तुम्हें बोना है, उसको उगाना है, उसको काटना है, उसका देख रेख करना है। Then you harvest, you can eat. उसके बाद कटनी करोगे तो तुम खा सकते हो। Now, how many of you are able to see the resources of God? और कितने लोग परमेश्वर के ये जो साधन है आप देख पा रहे हो? Now, do you understand God has given you the resources? क्या आप समझ पा रहे हो कि परमेश्वर ने आप सभी को एक संसाधन दिया God है? has given you an opportunity to work. You are able to see that. क्या आप देख पाते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है काम करने का? If you do that work properly, money will come to you. Are you able to see that? क्या आप समझ पाते हो कि जब आप ये काम करोगे तो आपके जीवन में पैसा आएगा? Now, many people don't want to do anything. कई लोग कुछ नहीं करना चाहते, Just sit. बस बैठना चाहते हैं। God will give. हाँ, परमेश्वर दे देंगे। You be in your world of imagination. तुम अपने कल्पना की दुनिया में ही रहो। Whatever opportunity God is giving, He is going to give you the money. He is going to give you the resources. Please work on that. और जो कुछ प्रभु मौका देंगे परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे, आपको उसका संसाधन देंगे। आप कृपया काम करें। What is the promise which God gave? परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा दिए? The land is flowing with milk and honey. और उस देश में मधु और दूध की धाराएं बहती है। So it doesn't mean you sit quietly, milk and honey is automatically going to come. God means the resources I am going to give you when you do the work properly. और इसका मतलब ये नहीं है कि दूध और मधु बहते रहेंगे, तुम पीते रहो और उसको वहां पर बैठ जाओ। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि मैं संसाधनों को दूंगा, मैं चीजों को दूंगा, तुम उसका उपयोग करके तुम काम करो। The covenanted community will get the bill. वाचा का समुदाय को कटिबंध मिलेगी। And in that is the sword, in that is the money. और उसी में तलवार है, उसी में पटवा है। The next is weapon, that is the sword. और अगला है हथियार। Now can we read verse number 9? पद 9 हम पढ़ेंगे। A land where bread will not be scarce and they will lack nothing. A land where rocks are iron and you can dig copper out of the hills. और यहाँ पर बताया गया है कि उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। So people are asking, Lord, war is coming, war is coming. और परमेश्वर से लोग पूछते हैं, प्रभु युद्ध आ रही है, युद्ध आ रहा है। God says, go and fight. परमेश्वर कहते हैं जाके युद्ध लड़ो। Where is the weapon? और कहाँ है वो हथियार? God says, see the stones. परमेश्वर कहते हैं पत्थरों को देख पा रहे हो? The land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. और वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तो तांबा खोद कर निकाल सकेगा। For an ordinary person, you look at it, it is just rock. एक साधारण व्यक्ति के लिए जब वो ऊपर से देखता है तो उसके लिए केवल पत्थर ही दिखाई देती है। But for a covenanted person, पर एक वाचा का समुदाय के लिए in his eyes, that is not rock, that is sword, that is breastplate, all the copper and iron are inside that. उसके नजर में ये कोई पत्थर या पहाड़ नहीं है, उसी में वो सारा सीना बंद है, हथियार तलवार है, उसी में से वो लोहा और तांबा को खोद कर निकालेगा। Matthew chapter 11 verse 12 says, और मत्ती 11 उसका 12 ऐसा कहता है, from the days of heaven, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it.
Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती 11 उसका 12 ऐसा कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। People who are violent will take it by force. और जो बलवान है वो छीन लेंगे। If we are with the covenant with the Lord, we are the inheritors. यदि हम प्रभु के साथ वाचा में बंधे हैं तो हम ही वो भागी हैं। What is the reason Israel is very important land today? क्यों आज इस्राएल एक बहुत ही मुख्य देश है? The land is the mud of the covenant. और वो जो मिट्टी है, वो जो जमीन है, वो उसमें वाचा की मिट्टी है। God told Abraham, this is the land I am going to give you. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इसी जमीन को या इसी देश को मैं तुम्हारे हाथ में देने वाला I am going to give this land as an inheritance. ये एक भाग के रूप में मैं तुम्हें देने वाला His हूँ। grandson Jacob goes to Beersheba to Padan Haran, fearing his brother. और उसका जो पोता, अब्राहम का पोता, अपने जान के डर से वो पदान आराम जाता है। Then he rests his head on a stone in a place called Luz. और लुज नामक एक जगह में वो अपने सिर को आराम करने के लिए लेटता है। God is opening his eyes and he is seeing a dream. और वो अपना आंख खोल के एक सपने को देखता है। And Genesis chapter 28 verse 13 says, और उत्पत्ति 28 उसका 13 ऐसा कहता है, on top of the ladder the Lord is standing. उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़े थे। And he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. और वहां पर 13 वचन में वो कहते हैं कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम और का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। Now the Jewish people are saying that this is the title deed which God has given. और यहूदी लोग ऐसे कहते हैं कि ये वो टाइटल डीड है जो परमेश्वर ने दिया है। So they say this land is our land. और कहते हैं कि ये जो भूमि हमारा है। So this is a covenanted land. ये एक वाचा का भूमि है। So this land Canaan is a replica of the eternal Canaan which is going to come. और ये भूमि जो है कनान, ये आने वाले कनान का एक उदाहरण है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When these people entered Canaan, जब ये लोग कनान के अंदर प्रवेश किए, there were some pagan gods which was worshipped in that place. और वहां पर पहले से ही कुछ अन्य जाति, अन्य देवताओं को पूजते थे। And what was that? और वो कौन कौन से थे? I am going to mention 3 pagan gods majorly. और 3 मुख्य अन्य देवताओं का नाम मैं लेने वाला हूँ। Number 1, पहला Dagon. दागोन, Number 2, दूसरा Beelzebub. बेलजबूल, Number 3, तीसरा Ashtaroth. अश्तरोत। So now first let us see Dagon. और पहले हम दागोन को देखेंगे। Now this is the rain god. और ये बरसात का देवता है। If no rain is coming, यदि बरसात नहीं आती है no crops is growing, और जमीन में वो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, so then no money. तो पैसा नहीं आ सकता। So this is the money god. तो ये जो है ये पैसा का देवता है। Secondly, दूसरा Beelzebub. बेलजबूल, Now this is the god of insects. और ये कीड़ियों का देवता है। When the harvest is coming, और जब कटनी का समय आता है, if you are not worshipping this god, यदि हम इस देवता का पूजा नहीं करते, that will send all the insects and it will all eat all the harvest. तो बोलते हैं कि वो सब कीड़ों को भेजेगा और इसके द्वारा क्या होगा, वो कटनी का जो चीजें सब खराब हो जाएगी। So now there is no food. अभी भोजन नहीं है, So this is the god for food. तो ये भोजन का देवता बन गया। Nowadays what we are doing? आजकल हम क्या करते हैं? We are putting pesticides. हम आजकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं, Now रसायन। that will kill all the insects. We are thinking हम सोचते हैं कि वो सारे मक्खी कीड़ा सब कुछ नाश कर देगा। that is killing the insect. It won't kill us, sir.
और ये जो उस कीड़ों को नाश करता है, क्या हमें नाश नहीं करेगा? So Dagon is the god for money. तो डैगन जो है वो पैसों का देवता, Beelzebub, god for food. और बीलजेबुब जो है भोजन का देवता, The third one is Ashtaroth. और तीसरा है अश्तरोत। Now this god is the god for sex. ये जो है यौन संबंध का देवता है। It is a female goddesses. ये एक स्त्री थी, देवी थी। Now see, it will have all eggs in its body. उसका पूरे शरीर में स्तन होगा। So what a person should do if a person has to get conceived, it has to get a child. यदि कोई बच्चा चाहते हैं तो The woman has to go totally naked to the statue. और स्त्रियां बिल्कुल निर्वस्त्र जाते हैं इस मूर्ति के पास, And they have to hug and rub the body against the statue. और इस मूर्ति को गले लगाकर अपना शरीर को उस मूर्ति के साथ रगड़ते हैं। The point what they are saying is that the egg which is there in the statue will get transformed to this girl and she will become pregnant. और ऐसे कहते हैं कि ये जो अंडा जो इस मूर्ति में है वो पास होकर इस लड़के के गर्भ में आ जाएगा और ये लड़की गर्भवती बन जाएगी। So just see what a foolishness this is. और देखिए कितना मूर्खता है ये। These are the gods which was there in Canaan. और ये कनानी देवी देवता है। Money god, एक है पैसा के लिए, food god, भोजन के लिए, sex god. और यौन संबंध। Today if you see the people, आज यदि हम लोगों को देखते हैं, all the people want this three only. सब लोगों को ये तीन चीज की आवश्यकता ही है। I need money, I need food, I need sex. मुझे पैसा चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे यौन संबंध चाहिए। The people who entered into a covenant with God need not worry about all these things. जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है, इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। God will take care of all these three. परमेश्वर इन तीन चीजों का ख्याल रखेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। People who have entered a covenant with our Jehovah God, हमारे प्रभु यहोवा से यदि कोई वाचा बांधता है, finance, food and fertility, God will take care. और उसके लिए धन, यौन संबंध और भोजन प्रभु संभाल देंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Israel, at that time we have to understand one more thing. The Israelites did not have swords that time. हमें ये बात समझना है कि उन दिनों में इस्राएलियों के पास तलवार नहीं होती थी, But the Philistines were blacksmith. पर फिलिस्तीन लोग जो है वो ब्लैक स्मिथ थे। They had equipment. उनके पास हथियार होती थी। But God, how God protected the Israelites? कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचा कर रखा? In His own way, God protected the people. वो अपने ही तरीके में पर लोगों की रक्षा किए थे। I will give you example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। You know, donkey's jawbone. क्या आप जानते हैं गधे का जो हड्डी है? Through a donkey's jawbone, गधे के हड्डी के साथ, you know, Samson killed how many people? आप जानते हैं शिमशोन ने कितने लोगों को मार डाला? Very good, fantastic answer. बहुत अच्छा जवाब। Samson killed 1,000 people. शिमशोन ने 1000 लोगों को घात किया। Oh, I don't have any equipment. No, with the equipment what you have, God can do. ओ मेरे पास कुछ हथियार ही नहीं है, जो हथियार प्रभु ने आपको दिया उसी के साथ तुम कर सकते हो। There was another one, little boy. एक और छोटा लड़का था। The Philistine was having a lot of sword and everything he had. फिलिस्तीनियों के पास बहुत हथियार थी, तलवार था, सब कुछ था। But there was a little boy who did not have anything. पर एक लड़का था जिसके पास कुछ नहीं थी। But he took one stone. एक पत्थर लिया, कुछ पत्थरों को लिया। And he just with the stone, he just hit Goliath and he won the war. और उस एक पत्थर को घुमाकर गोलियात के सिर में
डाल दिया और वो जीत गया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So our God is going to take care of all our needs. और हमारे परमेश्वर हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। Let us turn our Bible to the book of Zechariah. निकालेंगे हम जकरिया के पुस्तक Chapter 4 verse 6. 4 उसका 6। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. परमेश्वर कहते हैं कि ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। How many of you want to confess that with the spirit of the Lord, everything He will take care? और कितने लोग ये अंगीकार करना चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा सब कुछ ख्याल रखेंगे परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We are turning our Bible to Exodus chapter 15 verse 3. निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 पद। Yes, Exodus 15 verse 3. निर्गमन 15 उसका 3। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। His name there is victory. उनके नाम में विजय है। The covenanted people need not worry. In His name there is victory. और वाचा के लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके नाम में विजय है। He is my bridegroom. वो मेरा दुल्हा है। Deuteronomy chapter 20 verse 3 and 4 we are going to read. और व्यवस्था विवरण 20 उसका 3 और 4 हम पढ़ने वाले हैं। Let us see what God says here. और हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं। Deuteronomy chapter 20 verse 3 and 4. व्यवस्था विवरण 20 उसका 3 और 4। Yes. हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now God says, परमेश्वर कहते हैं, today you are going into battle with your enemies. आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। He is telling 3 points. Just be careful. Note it down. 3 बातें वो कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। Don't be faint-hearted. तुम्हारा मन कच्चा ना हो। That is number 1. ये पहली बात। Number 2, दूसरा, don't be afraid. तुम मत डरो। Number 3, और तीसरा, do not be terrified of them. और न थरथराओ। I repeat. मैं फिर से दोहराता हूँ। 1, पहला, don't be faint-hearted. तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Number 2, दूसरा, don't be afraid. मत डरो। Number 3, और तीसरा, do not be terrified of them. उनके सामने मत थरथराओ। Why? What is the reason God is saying that? क्यों प्रभु ऐसे कहते हैं? The one who is going to go into the fight with you is our Lord. क्योंकि जो आपके संग संग युद्ध लड़ने को जा रहा है वो व्यक्ति है यहोवा परमेश्वर। You say there is no money for me. आप कहते हैं कि आपके जीवन में पैसा नहीं है। Are you thinking there is no protection for yourself? क्या आप कहते हैं कि आपके लिए सुरक्षा नहीं है जीवन में? You are a covenanted person, right? क्या आप वाचा के संतान ही हो ना? Can you put your trust in God? क्या आप अपना विश्वास परमेश्वर पर डाल सकते हैं? God is specifically saying now, don't be very afraid, don't be faint-hearted. और परमेश्वर विशेष तरीके से कहते हैं कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। The Proverbs 21:31 says, और नीति वचन 21 उसका 31 ऐसा कहता है, the horse is made ready for the day of battle, but the victory comes from the Lord.
नीति वचन 21 उसका 31 ऐसा कहता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। So can we raise our hands and say that victory is going to come from the Lord? अपना हाथ उठाकर हम कहेंगे कि जय यहोवा से ही मिलती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now I am going to give you just one more verse. एक और पद मैं आपको देने वाला हूँ। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 और 4। Yes. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our weapons which we fight are not the weapons of the world. हमारी जो युद्ध है वो संसारिक युद्ध नहीं है। Now today, bring all your problems in front of your eyes, my dear children of God. आज आपके सारे समस्याओं को आपकी आंखों के सामने लाए मेरे। Bring all your pressures in front of your eyes. आपके सारे जीवन की समस्याएं आप अपने आंखों के सामने It लाइए। can be a disease. वो शायद एक रोग हो सकता है, It can be a problem in a relationship. या रिश्तों में कुछ गड़बड़ी हो सकती It है, can be a problem in a business or a job. या काम में या कोई व्यापार में कोई समस्या हो सकता It है, can be a problem in finances. या आर्थिक बातों में कोई समस्या हो सकती है। Understand today the victory is going to come from the Lord. और आज समझ लीजिए कि आपका विजय यहोवा ही से मिलेगी। 1 Corinthians 15:57 says, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 57 योग कहता है, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। Glory be to God. परमेश्वर की He महिमा हो। is giving us victory through our Lord Jesus Christ. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And if we are in the covenant with Lord, और यदि हम परमेश्वर के साथ उस वाचा में हैं, then we are not an ordinary person. तो हम साधारण व्यक्ति नहीं है। We have entered into a covenant with the creator of heaven and earth. आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के साथ हम वाचा बांधे हैं। We are the covenanted community. हम वाचा का समुदाय हैं, And he has given his belt. और वो अपना कटिबंध हमें दे चुके हैं। He has given his protection. वो हमारे लिए सुरक्षा दे चुके हैं, He has given his resources. और वो हमारे लिए अपना संसाधन दे चुके हैं। Be blessed and live a blessed life. आशीषित रहिए और आशीषित जीवन बिताइए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God bless you, children of God. प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों। Amen and amen. आमीन और आमीन।